ایک ایسا جو ہے کریکٹر پلے کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کیسے؟ آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے ریڈ بتی کے فوراً سے کیا آتا ہے؟ ریڈ بتی دیکھیں آکورڈ ایریا میں جاتے ہیں اس کو لوگ غلط سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں. ریڈ بتی کو ہم لوگ جاتے ہیں اسٹاپ. بالکل اس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا, دیکھنے والے کو بھی پتا ہے. اس کا مطلب کہ رک جاؤ ادھر, یا تو جانے سے پہلے ہی رک جاؤ. جو مطلب ہے رک, یا تو اس کے ایج پہ آ کے رک جاؤ یا اندر جا کے رک. ٹھیک ہے کہ جو اندر گیا وہ بھی وہیں کا ہو کے رک گیا, جو باہر رک گیا تو وہ تو باہر نہیں. جب وہ اندر جاتا ہے پھر وہ باہر کر ہی رہتا نہیں رہ سکتا. اور وہاں پر ہمیشہ فحاشی اور وانگی اور ایسے کام کیے جاتے ہیں, یا وہاں پر وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو کہ ایک معاشرے کو خراب یا اس کو برباد کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے یا ذریعہ بن جاتا ہے. سینئر آرٹسٹ ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم فین ہیں ان کی ایکٹنگ کے. نہیں سیریس, میں نے تو ان کا ابھی میرا تو ان کے ساتھ فرسٹ کام تھا, بٹ میں نے پریویس ان کے کچھ کام دیکھے تو ایکچولی مجھے ان کو کچھ بولنا تھا نا, یو نو کیا بولنا ہے, ایسا بولنا کیا تھا. ادھی رات نو تینوں راہ نہ لبے, ادھی رات نو تیرے تینوں پیچھے کتے پہ جان. اللہ خیر کرے. لفظ کم ہے تو مجھے خود بولا اے بھی بولنا ہے پرام مر. یہ آپ سے ایک سوال ہے, پاکستان میں ہر انسان اپنے فون پر اکیلے اکیلے اپنے کمرے میں کیا دیکھتا ہے؟ ہم اندر کھا کے کر کیا رہے ہیں؟ تو نیٹ فلکس پہ کیا آج کل آپ کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا, یہ ساری ٹیم کو نہیں پتا کیا ہے. برقع پہنتی عورتوں کو صرف آنکھوں سے وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا جس سے نا میرے دل اور دماغ میں کسی نہیں کیا. سیریسلی تو پلیز ڈونٹ سے آپ کسی کا وہ ان کا پروفیشن ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے, پردہ ہٹے گا تو پتہ چلے گا نا پیچھے کیا. وہ سنا نا پردہ کھل گیا تو پھر میں نہیں میں بتا دوں گی, مجھے مزہ نہیں آیا, صحیح سے نہیں, وہ پاپڑ لاؤ اور پاپڑ لاؤ. ٹھیک ہے. اچھا پاپڑ اور آگے السلام علیکم ناظرین, عالم شادی سے آپ کا میزبان شاہ زیب عالم. امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. اس وقت فریم میں میرے ساتھ دو خوبصورت چہرے موجود ہیں. پاکستان کی جان, پاکستان کی رونق جو ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. ایک بہت ہی جو ہے خوبصورت فلم ہے ریڈ بتی, یہ انوکھا ہی نام ہے ریڈ بتی. لیکن ریڈ بتی کا جب ہم نے پریمیم دیکھا, ٹریلر دیکھا, اس میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی لگی کہ ایسا فیل ہوا کہ پاکستان میں چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. اور کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے کہ شاہ زیب بھائی ٹریلر آپ نے جو ہے ٹریلر کے بارے میں کمنٹس کیا, اس سے پہلے آپ نے عزیر خان کا انٹرویو کیا, ہمیں یہ بتایا کہ ویڈیو جو ہے عزیر خان کی یہ جو فلم آ رہی ہے بہت زبردست ہے. لیکن جب یہ پریمیم لانچ ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہ پاکستانی فلم نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے, ہم فریم میں مین کریکٹر جو ہے عائشہ غفار اور سائم ہمایوں کو ہم نے فریم میں بلایا اور ان سے سارے سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے. سب سے پہلے تو ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بہت زیادہ. آپ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بہت زیادہ خوبصورت ہے الحمدللہ, اللہ کا نہیں یہ تو ویسے میں نے پوچھا نہیں, بالکل اس پہ یقین کرتے ہیں آپ, یہ آپ پوچھتے نہیں ہیں. میں ٹھیک ہوں. ہاں ماشاء اللہ, آپ ماشاء اللہ ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے. سائم بھائی, جی عائشہ غفار, اتنی خوبصورت مووی ریڈ بتی, نام بھی بڑا انوکھا سا ہے, کس طرح بنا بھی لی, اس کے اوپر آپ نے ایک ایسا جو ہے کریکٹر پلے کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کیسے؟ بیسیکلی اگر ہم ریڈ بتی کی بات کریں, صرف ریڈ بتی کا مطلب کیا ہے آپ تھوڑا سا بتائیں گے مجھے؟ واٹ از, آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے ریڈ بتی سے فوراً سے کیا آتا ہے؟ ریڈ بتی کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ لائٹ بند کر دیں یا یلو کی جگہ ریڈ کر دیں. نہیں نا, یہی تو آپ کو ہم نے ایک ٹائٹل سے ایک آئیڈیا دیا, وہ آپ لوگ جج ہی نہیں کرتے. ریڈ بتی دیکھیں اگر ہم آکورڈ ایریا میں جاتے ہیں اس کو لوگ غلط سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں ریڈ بتی کو. نہیں سر, آکورڈ کسی بھی ایریا میں ریڈ بتی کا مطلب ایک ہی ہے. نو گو ایریا. نہیں, اگر آپ ٹریفک پہ کھڑے ہوتے ہیں, ریڈ بتی جب جلتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں, اسٹاپ. بالکل ایسے. اگر ریڈ بتی ایک ٹاؤن میں ایک ریڈ بتی ایک ایریا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا, دیکھنے والے کو بھی اس پتا کا بھی مطلب اس کا یہی ہے مطلب کہ رک جاؤ ادھر, یا تو رک جاؤ یا تو جانے سے پہلے ہی رک جاؤ. جو مطلب ہے رک جاؤ. ٹھیک ہے, یا تو اس کے ایج پہ آ کے رک جاؤ یا اندر جا کے رک. ٹھیک ہے. کہ جو اندر گیا وہ بھی وہیں کا ہو کے رک گیا, جو باہر رک گیا تو وہ تو باہر نہیں, جب وہ اندر جاتا ہے پھر وہ باہر کر ہی رہتا نہیں رہ سکتا. ہے, ایسے ہی ہے. تو فلم کیسے کیا بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے ریڈ بتی یا ریڈ ایریا, جس کو ریڈ ایریا بھی کہا جاتا ہے, وہ ہمیشہ نو گو ایریا ہوتا ہے فار ایوری ون, اور وہاں پر ہمیشہ فحاشی اور وانگی اور ایسے کام کیے جاتے ہیں
जो कि एक मुआशरे को गलत रिप्रेजेंट करते हैं, या वहाँ पर वो सब कुछ किया जाता है जो कि एक मुआशरे को खराब या उसको बर्बाद करने का जरिया होता है या जरिया बन जाता है। अच्छा सारी बातें छोड़ दीजिए। अपनी फिल्म में ना अच्छा नहीं ये करते शुरू ये करते फीमेल फर्स्ट लेडीज फर्स्ट, हर जगह लेडीज फर्स्ट होती है। हमने फिल्म में भी आपको देखा सबसे आगे आप ही नजर आ रही है यार, आप तो मेन हीरो थे, आपको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। सीनियर आर्टिस्ट है, हम क्या कहते हैं, हम फैन है इनकी एक्टिंग के, नहीं सीरियसली। मैंने तो इनका अभी मेरा तो इनके साथ फर्स्ट काम था, बट मैंने प्रीवियस इनके कुछ काम देखे तो मैं। अच्छा साइम भाई आपका पहला प्रोजेक्ट है जी जी, और उसमें 2 कैरेक्टर प्ले करते हैं। एक फ्रेम में आप कहीं पे भी 2 दफा नहीं आए, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। एक फ्रेम में 2 जगह, एक फ्रेम में 2 जगह नहीं है, लेकिन डबल एक रोल में जब डबल रोल किया, जब आपकी लुक देखते हो एक साइड पे बाल और मैं लंबे सबको डेविल बता लुक। दूं कि वो मेरे रियल बाल थे जो मैंने इस सीन के लिए खुद कटवाए। अच्छा हाँ जी। सीन के लिए बाल कटवाए जी, कुर्बानी रोल के के लिए बिल्कुल। हाँ। हाँ, अच्छा आयशा आपने भी माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए पाकिस्तान में और बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं, ज़रा आप बता दें कौन कौन सी मूवीज़ की और कितनी मूवीज़ कर चुके हैं? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट इट्स माय स्टार्ट। कभी भी जो आर्टिस्ट होता है ना उसका आर्ट खत्म होता है, ना ही उसका ये होता है कि वो ये बोलता है कि मैं एक पीक पे पहुंच गया हूं। आर्ट का नाम ही आजिज़ी का है, बिल्कुल। जो झुक जाता है वो आर्टिस्ट होता है। मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, दिस इज़ माय बिगिनिंग, दिस इज़ माय स्टार्ट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, जिसकी वजह से मुझे आगे से मैं नहीं जानती हूँ किस तरह से काम मिलता जा रहा है। पता नहीं इसकी रीज़न नहीं समझ इसकी रीज़न सबसे पहले तो नहीं, इसकी रीज़न तो नहीं, खुदा बाई ताला है कि मेरे माँ बाप जो बगैर किसी वजह के मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दे रही है, और ये सब मेरे मालिक का करम है और मेरे माँ बाप की दुआ है। अच्छा कितनी मूवीज़ कर चुके हैं इधर पाकिस्तान? अभी तक पाकिस्तान में मेरी 4 हो चुकी, 4 मूवीज़ कर अभी चुके हैं। बल्कि एक तो ईद पे हमारी लगी और अभी तक उतरी ही नहीं है, इश्क लाहौर। इश्क लाहौर तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ बिट्टू भट्ट साहब, फर्स्ट डे ऑफ ईद हमारी लगी और स्टिल अभी तक हाउसफुल जा रहा है। और बहुत कमाल का उसमें मेरा करेक्टर है, बहुत चुलबुला और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। उसमें कैसे प्रिया साहब ने मेरे साथ, अच्छा वो बहुत मतलब हमेशा मैंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि जो इंसान गिव रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, बिल्कुल। लेकिन कैसे प्रिया साहब के साथ मुझे फील भी नहीं हुआ कि माशाल्लाह वो इतने बड़े आर्टिस्ट, सारा कुछ वो मुझे बोले, परेशान नहीं हुए, मुझे बोलो। एक्चुअली में मुझे उनको कुछ बोलना था ना, यू नो क्या बोलना था, ऐसा बोलना क्या था, क्या बोलना था? मुझे बोलना था कि अद्धी रात ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, अद्धी रात ਨੂੰ तेरे ਤੈਨੂੰ पीछे कुत्ते पै जान, अल्लाह खैर करे। और ऐसे बहुत सारे लगे, ठीक है? तो अपने दंत देख सीरियसली और मैं सीरियसली, और वो खुद इसको एंजॉय कर रहे थे, और जब उनको लगा ना कि कुछ लफ्ज कम है तो उन्होंने मुझे खुद बोला ए भी बोलना है। ये होते हैं आर्टिस्ट, बिल्कुल। ये होता है फनकार, और मुझे फील ही नहीं हुआ मतलब कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और मैं उनको बुरा भला कही एकदम पराम मार। अच्छा जो आपने रेड बत्ती में किरदार अदा किया, एक ऐसा किरदार है आजकल की जो लड़कियां वो देखती हैं कि इस किरदार को तो बहुत ज़्यादा टिपिकल सोचती हैं इस बारे में कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये जो फिल्म बनाई गई है लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए। मैंने जब उसका ट्रेलर देखा, जो टीज़र आप लोगों ने अपलोड किया, उसके बाद सॉन्ग अपलोड किया, बहुत से लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करती। मेरा आपसे एक सवाल है, पाकिस्तान में हर इंसान अपने फोन पर अकेले के लिए अपने कमरे में क्या देखता है? माजरत के साथ बोलना, किसी के ऊपर कमेंट करना, किसी को बगैर देखे बगैर जाने बुरा कर देना बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान। हम अंदर खाते कर क्या रहे हैं, बट वी आर डूइंग, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग, बट हम देख क्या रहे हैं। एक चीज अगर मैं बताऊं, देखो ना हमारे जो इधर मुआशरा पाकिस्तान मेजॉरिटी को पता है नहीं रियल लाइफ और रियल लाइफ डिफरेंट है, बिल्कुल। ठीक है, रियल लाइफ में हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम एक्चुअल में वो लोग नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज जिस तरह आयशा ने बोला कि बाकी अकेले बैठ के आप क्या कुछ कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी है। आपको तो नेटफ्लिक्स चाहिए जी, नेटफ्लिक्स दिखा दो मुझे, तो नेटफ्लिक्स पे क्या आजकल आपको नहीं पता, इनको नहीं पता, ये सारी टीम को नहीं पता क्या नेटफ्लिक्स। बट द थिंग इज दैट कि हम दिखना चाहते हैं बहुत अच्छे, बहुत शरीफ सादे, बहुत, बट हमारा दूसरा। अच्छा अगर हम ये यहाँ पे बात करते हैं कि लोग कमरे के अंदर बैठ के देखते हैं और वही चीज़ हम सरेआम खोल के सामने रख देते हैं, उसी जो चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं एक मूवी के जरिए, उसमें क्या सर मैं कहूँगा कि अगर नहीं नॉलेज नहीं, अगर इसमें कैसे नॉलेज नहीं इसको खुल के अगर सामने रख दिया जाए ना, तो आधी से ज्यादा मेंटालिटी लोगों की ना मैच्योर हो जाए। जितना छुप के आप काम करोगे ना, तो उतना ही आप उसके अंदर घुटते जाओगे और लोगों की नजर में गलत रहेगा। जब एक बार खुल के सबके सामने आ जाएगी ना चीज, तो वो उस तरह से नहीं रहेगी।
उसको आप उस नजर से नहीं देख सकोगे कि वल्गैरिटी है, ये कुछ है। अब आप इंडियन आइटम सॉन्ग्स नहीं देखते, इंडियन मूवीज नहीं देखते, उसके अंदर उनकी ड्रेसिंग्स क्या होती है। अब यहाँ पे कोई लड़की ऐसे कपड़े पहन ले तो उसको तो तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, वो तो आप बड़े शौक से देखते हो। क्यों देखते हो फिर? वो तो एक इंडिया ना, और ये हमारा मतलब सर अच्छा इंडिया पाकिस्तान क्या है, हम सब तो एक ही है ना। हम सब एक है, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद किस पे रखी? आपको लगता है कि अब ये बात बहुत लंबी चली है? पाकिस्तान की बुनियाद किस पे रखी? पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पूरा पाकिस्तान उस बुनियाद के ऊपर बैठा हुआ है? नहीं, आप बड़े से छोटे लेवल तक आ जाओ, आप किसी को भी देख ले, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। है बराबर। हाँ। इस टाइम लेकिन पाकिस्तान में 5 उंगलियां बराबर हुई हैं, सारी डाउन की तरफ हुई हैं। अच्छा। हाँ, मेंटालिटी के हिसाब से। आपकी बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि नॉलेज, इस फिल्म से लोगों को नॉलेज Knowledge। जी, क्या नॉलेज? नॉलेज ये है कि देखिए हम दो तरह की चीजें होती है। बेसिकली हमने जो रेड बल में फिल्म की बात फिल्म की, राइट की, नाउ आई जी, एम जी, टॉकिंग अबाउट द फिल्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि देखने में कमरे बंद बिल्कुल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इससे हमें ये नॉलेज मिल रहा है कि बेसिकली दिखाया ये जाता है या रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है बहुत मादक बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा माजरत के साथ कि ज़रूरी नहीं है कि बुर्का पहनने वाली ही जो होती है वो इज्जतदार है या वही तहज्जुद पढ़ती है, तवाइफा भी तहज्जुद पढ़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सजदा सिर्फ उसी के लिए। मैंने तवाइफों को तहज्जुदें पढ़ते हुए देखा है और मैंने बुर्का पहनी हुई औरतों को सॉरी किसी को टारगेट नहीं करी, बुर्का पहनती हुई औरतों को सिर्फ आंखों से वो सब कुछ करते हुए देखा है जिससे ना मेरे दिल और दिमाग में समझ नहीं किया। सीरियसली? तो प्लीज डोंट से आप किसी का वो उनका प्रोफेशन है, किसी के प्रोफेशन को खुदा से या किसी के प्रोफेशन को उसके रिलीजन से किसी भी चीज से मत मिलाएं ना, प्लीज डोंट डू दैट। हमने ये अपनी फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की है कि बेसिकली जो रेड बत्ती एरिया होता है, नो गो एरिया होता है, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी बसते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, उन लोगों के दिल बहुत साफ होते हैं, वो लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं, वो इज्जत देने वाले होते हैं, वो मोहब्बत करना जानते हैं, वो इज्जत देना जानते हैं, वो लोगों का दिल में प्यार रखते हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। उजैर साहब ने यही तो सब किया ना। बिल्कुल, मैं ये बोलने लगा था कि उनका कैरेक्टर इस चीज अच्छा, जब उजैर साहब का प्लेइंग अ पिम्प रोल, कैरेक्टर जब देखा उजैर साहब का, वो पिम्प एक बने हुए हैं, बट जब आप मूवी देखेंगे तो आपको उसकी बैक वो जब मैंने रियलिटी पता लगेगी कि वो पिम्प। टीजर आप लोगों का देखा ना, उसमें मुझे ये चीज समझ आई है कि वो बंदा लोगों को ये इस हवाले से कहता है कि उधर जाओगे तो गंद है, बच जाओगे तो तुम्हारी बचत है, इस तरह की बात है कि 3 मिनट में आप 1 घंटा 40 मिनट को कैसे मिला सकते हैं? आपने सिर्फ 3 मिनट देखे ना, 3 मिनट और 1 घंटा 40 मिनट को भी रहते हैं ना, तो पार्टी अभी बाकी है, पार्टी ये भी बाकी पता लगेगा। बिल्कुल, अच्छा, पार्टी ये भी बाकी है। 3 मिनट के टीजर से वो करिए कुछ नहीं पता चला, आप नहीं जानते नहीं व्हाट जानते। इज बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दा हटेगा तो पता चलेगा ना पीछे क्या वो सुना ना, पर्दा खुल गया तो फिर हाँ, सारे भेद खुल जाएगा। फिर भेद खुल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, फिर भेद इस चीज में खुलेंगे कि हम जिसको अच्छा कहते हैं वो अच्छा नहीं होता और हम जिसको बुरा समझ रहे होते हैं ना वो बुरा भी नहीं होता। हकीकत है, बिल्कुल ये चीज़ें माननी होगी कि जिसे हम बुरा कहते हैं वो बुरा हकीकत है, बुरा नहीं होता। क्या पता उसके पीछे उसकी क्या कहानी हो, क्या उसके पीछे उसकी स्ट्रगल हो, और क्या उसके पीछे जो है उसके घर वालों की क्या मजबूरी हो। इस चीज़ पे तो हम कमेंट्स नहीं कर सकते। आप लोगों का सवाल था कि जब आप उन्हें बुलाएं गेस्ट को, ये सवाल लाजमी रखने कि पाकिस्तान में क्या ऐसी फिल्म प्रमोट की जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप कहते हैं कि अबाया पहनने वाली तमाम लड़कियाँ माजरत के साथ कि अगर वो बेहयाई की तरफ नहीं जाती या जाती हैं, वो उनका अपना सरदर्द है। अल्लाह पाक ने अगर हम सब के राज छुपाए हुए हैं तो इसमें अल्लाह पाक ने हम सब की बेहतरी रखी है। अगर आपकी सॉरी शब्द बात काट रहा हूं, इसमें आपकी बात की ना, ये पांचों बराबर तो नहीं है। शाहज़ेब, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो घरों के लड़कियां बुके खरीदते हैं, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में जाते हैं, ये चीज़ें तो वो एटलीस्ट हो रहा हो। पता है मैं इनमें प्रोफेशनली आई एम एन आर्किटेक्ट, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं, प्रोफेशनली आई एम एन आर्किटेक्ट, बट इन दिस फील्ड फ्रॉम आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 8 to 9 months। माशाल्लाह। 8 से 9 महीने मुझे लगता है चले इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है कि मुझे समझ नहीं आ रही मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत किस तरह से मैं इकट्ठी कर रही हूँ। बट द थिंग इज दैट कि आप जो हो ना प्लीज हो, जो हो वही दिखावा नहीं करना चाहिए। जस्ट बी योरसेल्फ। या एब्सोल्युटली व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग। आप दुनिया को रिप्रेजेंट कुछ और कर रहे हो, आप वो कुछ और। तनकीद करना बहुत आसान है, तारीफ करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। और आप लोग तनकीद क्यों कर रहे हो, मुझे पाकिस्तान नहीं समझ आ रही है। पाकिस्तान है। अच्छा, और आप खुद क्या कर रहे हैं? आप अपने मुल्क के लिए, अगर हम पाकिस्तानी हैं, मैं बहुत पक्की वाली पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, पक्की वाली पाकिस्तान सोच ले। जिंदाबाद। हाँ, अच्छा, हाँ, पक्की की तरह पाकिस्तान। करके बताए, पक्की की स्पेलिंग सुना दे जरा। पक्की की स्पेलिंग पक्की की स्पेलिंग उर्दू में स्पेलिंग सुना दे। उर्दू में स्पेलिंग सुना दे जरा।
नहीं, मैं तो हर जगह पर कहती हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई मैं पाकिस्तान है तो मैं हूँ, अगर पाकिस्तान ना होता तो मैं नहीं होती, ठीक है। बट आप तो क्या कर रहे हैं, इतने पैट्रियट तो हम भी, अभी पाकिस्तान मैं में बहुत अंदर ज्यादा हम भी हैं, बिल्कुल दिल हमारा यहीं पे है, हम दुनिया में जहाँ मर्जी हुए हैं, जो दिल है वो पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान को हमने तो नहीं खराब किया। अच्छा आयशा का पाकिस्तान को आपने खराब नहीं किया, हमने पाकिस्तान नहीं, इशारा आप किसकी तरफ नहीं कर नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान इशारा आप को- किसकी तरफ नहीं, इनकी तरफ तो बिल्कुल- आपने जो इशारा किया पाकिस्तान को हमने खराब नहीं, हमने खराब नहीं किया पाकिस्तान देखा? को, बिल्कुल। आज वो देखे ग्रीन ड्रेस भी पहन के आई है, वो बताना चाह रही है मैं पाकिस्तानी, वो बताना चाह रही है मैं पाकिस्तानी। She is a true patriot. अच्छा साहिम भाई, लास्ट टाइम जब मैंने उजैर भाई का पॉडकास्ट, जी जी, आप भी आए, मैं भी आया था, कैमरे के पीछे थे, मैं कैमरे के पीछे था। आज कैमरे के आगे उस सीट पे आज बैठे हुए हैं, क्या फीलिंग्स हैं और उधर से इधर तक का सफर कैसा? रुके मैंने क्लैपिंग लगी, चलें जी। यार अगर मैं ऑन रियलिटी बेस बताऊं तो मुझे कोई फर्क इतना लगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूँ, मेरे लिए कैमरे के पीछे कैमरे के सामने एक जैसा ही हूँ। ठीक है, लाइक मैं इस चीज को बड़ा फॉलो करता हूँ, जैसा आयशा ने बोला कि जो आप हो वो हीरो, तो बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं कोई देखिए एक्साइटमेंट होती है, Excitement है, कि आप एक होस्ट की सीट पे, एक हॉट सीट पे बैठे हैं, हॉट सीट, हॉट सीट सीट पे बैठा हूँ। एक नहीं, feeling- खुशी तो ऑब्वियसली होती है, लाजमी बात है कि जो ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी, ठीक है, बट जब से इस चीज़ में मैं एंटर हुआ तो मुझे इस चीज़ का शौक भी हो रहा है, क्रेज भी हो रहा है, और इंशाल्लाह इसको लेके मैं पहली फिल्म है, पहली फिल्म है। अभी रिलीज होने वाली है, कब हो रही है? नहीं मैं एक बात है, जब ड्रामा भी आ रहा है ओ, ड्रामा आ रहा है ओ, सीरियसली? तो ये नहीं बात करनी थी, कौन सा ड्रामा आ रहा है बता दे आप। बता देंगे इंशाल्लाह। कौन सा आ रहा है? नहीं चले सॉरी, थोड़ा सा थीम दे दे, थोड़ा सा, थोड़ा सा दे। थोड़ा नहीं हम बता रहे वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। अच्छा अब जो है आगे क्या करने जा रहे हैं, किस किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? प्रोजेक्ट है सच 2-3 हैं वो, लेकिन अभी रिवील नहीं करूंगा। कैमरे के बाद Oh my आपको God, oh my God, कैमरे के why बाद getting आपको serious? आपको काटने लगे। Oh my God, why getting serious? जरा जरा ये लोग यहाँ से चले जाए, फिर अल्लाह। मैं बताऊँ। इन लोगों में आप डायरेक्ट आयशा को टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इनको मैं इधर कोई भी नहीं है, कोई भी सर, नहीं। ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, इनको हम टारगेट करने की हमारी जरूरत ही नहीं सर। मुझे अंदाजा हो रहा है आप नहीं आप जिस तरह बार बार इशारे कर रहे हैं, जिस तरह उनको जो कर रहे हैं ना, मुझे अंदाजा हो ए आखा तीनू सुनावा नो हाँ। रहा अच्छा पकड़ा गया। साहिब भाई, जी, जी। जो सबसे ज्यादा आपको फिल्म में मजा आया, जिस डायलॉग में मजा आया, जिस सीन में आपको मजा आया, वो सीन जरा बताएं। जिस सीन में सबसे ज्यादा? हाँ, एक सीन में मुझे बड़ा मजा आया था। एक तो मैं बता सकती हूँ, एक में जी, इसको जी। मरने का मजा आया वो था यार मैं इतना कमाल मरा हूँ, क्या? इतना Seriously? कमाल मरा हूँ। और इतना खुश हुआ मरने के बाद, इतना खुश मैंने आज तक किसी इंसान को मरने के बाद इतना खुश मरने के बाद खुश? भाई मैं इतना प्यारा मरा हूँ, माशाल्लाह, क्या बताऊँ इतना यार, प्यारा मर गया। मैं जो मर के गिरा हूँ ना, मैं कहता हूँ कोई लाइव देखता तालियां मारता। किसकी बाहों में गिरे थे मर के? ये भी जमीन की, अच्छा, धरती माँ की धरती माँ की कोख में गिरा था। अच्छा वो सीन मत करना। एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एक्ट का एज एक्टर, और वो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगा। फिर मैंने नैयर साहब के साथ 2-3 सीन किए, मुझे भी मजा आया। फिर एक हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं सईद सिकी साहब, उनको मैंने माइम करना था, लाइक मैंने पकड़ के उनको मारना था, तो वो मुझे बड़ा ना ऑड लग रहा था कि मैं कैसे करूँ, तो वो मैं माइम कर रहा था तो वो उस तरह नहीं पिक्चराइज हो पा रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला बच्चे मुझे रेल में हिट करो। अच्छा हाँ, तो मैं पहले बड़ा कंफ्यूज हुआ, पर जब मैंने किया तो फिर मुझे पता लगा कि यार आर्टिस्ट किस तरह बनता है, बंदा वो अपने आप को ही मार दिलवा रहा है यार, सीन सही हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ओवरऑल पूरी फिल्म में मजा आया, बट अगर मेरा पर्सनली तो हाँ, एक सीन है मेरा आयशा का और उज़ैर भाई का, मैं जब आयशा को लेके भागता बिलो को बिल्लो को लेके भागता हूँ, वो Sorry for that. क्या बिल्लो को लेके बात? बिल्लो को लेके भागता करेक्टर को, वो इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ, ये ट्रेजर में है। तो देन उस टाइम पे उज़ैर भाई की मेरी आपस में कुछ कन्वर्सेशन है इन डायलॉग्स, वो सीखना था सबसे। वो डायलॉग्स बड़े मेरा एक सीन मजे का था, मेरा एक सीन मजे का अच्छा, आपसे मैंने पूछा? नहीं मैं बताऊं, मैंने पूछा? उसमें यार, मैं बता देता हूँ, अनलिमिटेड पापड़ खाए। पापड़ खाने वाला सीन मजे का था जी। वो दुकान पे जाके जो पापड़, पान वाली दुकान से पापड़, नो 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 नो, एक नहीं, पार्क में ये और मैं बैठे हुए, और ओ बाय तो चांस सीन क्यों बता रहे हो? उसमें बस ये था, अच्छा, सीन क्यों बता रहे हो? टीजर में है वो मैंने सीन, इतने तो- रीटेक दिए, मैंने इतने रीटेक
इतने रीटेक दिए, एंड पे हमारे कितने जो पापड़ DOP खत्म? नासिर यही तो साहब है ना, बात है ना। एंड पे जो हमारे डीओपी है ना नासिर साहब थे, और नासिर साहब ने बहुत अच्छा काम करवाया, और जो हमारे डायरेक्टर थे इजाज विकी इजाज साहब। विकी साहब, उन्होंने बहुत कमाल हमसे काम करवाया। अच्छा, इजाज विकी साहब को पहले ही टेक में समझ आ गया कि मसाला, ठीक है, पापड़ खत्म। मैं कहा नहीं मैं दोबारा दूंगी, मुझे मजा नहीं आया, सही से नहीं हुआ, पापड़ लाओ, और पापड़ लाओ। ठीक है। अच्छा, पापड़ और आ गए। अच्छा, नासिर को लग रहा था कि शायद मैं रियल में मुझे सही नहीं हो रहा, मैंने दूसरा खत्म कर लिया। मैं कहा नहीं पापड़ लाओ, अरे कहता है एक ही हो रहे हैं। खाने की और वो बाय चांस वो लगे हुआ उस टाइम हम सेट पे गए हैं और नाश्ता नहीं किया हुआ था, हमने नाश्ता और ऑलमोस्ट किया। दोपहर का टाइम हो गया, सुबह 9 बजे के सेट पे गए, मतलब 1 बज गया, और ये सीन कंप्लीट करके जाके ठीक है। लंच टाइम होना था, तो ये और मुझे पहले पापड़ ही खबर खाई जा नहीं नहीं नहीं, मुझे खबर आई कि इन 3 सीन्स के बाद खाना खुला। अच्छा हाँ। मैंने कहा रोटी बस खुल सही है गई, फिर। शक्ल क्या बात है। मैंने कहा हमने पापड़ खोलते हैं। कितने पापड़ खत्म की? मैंने 4 खाई 4 पापड़ खा लिए। पूरे, हाँ। और वो थे भी वो ना वो सॉफ्ट मोहल्ले के सॉफ्ट पापड़ नहीं होते हैं, वो ऐसे छोटे नहीं मुझे आप मुझे ये बता दें, मोहल्ले के पापड़ और डीएची के पापड़ में क्या नहीं फर्क है? एक्चुअली मोहल्ले के पापड़ यार मोहल्ले के पापड़ मुझे याद है यार, मेरे बचपन में तो आते थे ब्लू कलर का, हाँ ये कोई और चीज़ है, वो मोहल्ले के पापड़ होते थे, ये लेने स्कूल पूरे ये दूसरे पापड़ होते, ये खाने का मजा नहीं आता, मोहल्ले वाले पापड़ खाने का हाँ, मजा वो कोई लोकल मोहल्ले वाले पापड़ थे, वो एरिया भी ऐसा है ना, मोहल्ले वाले भी पापड़ थे, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है। और मैंने 4-5 खाए, और ठीक विकी है। साहब को पहले सीन पे ही समझ आ गया, विकी साहब ने कहा अच्छा, हाँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी, मैंने कहा मैं तो करूंगी तो वाह करना जी। है। अच्छा, तो फिर नासिर साहब को नहीं पता चला, अच्छा। इजाज विकी साहब को पता चल गया, ठीक है। उन्होंने पहले भी मुझे ऐसे लुक कराई, मैंने उनको ऐसे लुक कराई, मैंने बिल्कुल ऐसे किया, मैंने कहा जो है उसके ऊपर, ठीक है ठीक ना। है। और वो कोई लोकल पापड़ थे, पर बहुत मजे के पापड़ मैंने थे। 4 वो पापड़ थे। अच्छा, वो लड़का स्पॉट बॉय गया भाग के बेचारा। अच्छा। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि देखिए हम जो मेहनत करते हैं वो तो एक अलग चीज है, बट हम कैमरे के पीछे जो कर रहे होते हैं ना मेहनत मेहनत, होती है ना, असल में ये लोग करते हैं, लाइट वाले गैफर्स जो होते हैं, स्पॉट बॉयज जो होते हैं, चाय वाले, वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि हम काम कर सकें। बिल्कुल। हम हंसते हुए, हम मुस्कुराते हुए। हमारे सेट पे कॉफी वाला बॉय था, क्या नाम था उसका, कॉफी वाला था, भूल गया। नाम भूल गए। यार मुझे नाम भूल जाते हैं, अच्छा। मुझे एक जगहों के नाम और लोगों के नाम मुझे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरा नाम याद है। आते मैं कौन हूँ? शुदैब आलम एंड आयशा गफ्फार। ठीक है। हाँ। आपकी बिल्लो आप दोनों के भूल के मैंने इतने मार इसका मतलब ये कि नाम भी मतलब से बिल्कुल। भूलते हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं मतलब से। हाँ। अच्छा, सारी बातें होगी, आपने ये भी बता दिया कि फिल्म का मकसद क्या है, जी बिल्कुल। किस वजह से फिल्म बना रहे हैं। अब जो है थोड़ा सा पर्सनल आ गया, जी पर्सनल है। करते क्या हैं आप पर्सनल लोग? ये सीधा ठाक करके। नहीं, ऐसे ऐसे भी मुड़ती है चीजें। आज हो पर्सनल तो आज हो। नहीं बैठे, इजी इजी कूल। अच्छा, मुझे बताया करती क्या है? प्रोफेशनली आई एम एन आर्किटेक्ट। हाँ। मैं आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्ट हैं आप, और आप क्या करते प्रोफेशनल हैं? अच्छा, शो वगैरह करते हैं, शादी की जाए कौन? आप मैं थोड़ा 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 का क्या मतलब? थोड़ा मतलब ये होता है कि कभी मेरी हाँ होती है, अगले की ना होती है, कभी अगले की हाँ होती है तो मेरी ना होती है। ये कैसी शादी चल कौन रही है? शादी चल रही है? मैं बताती हूँ, मैं शुदीद वाली सिंगल हूँ, शुदीद वाली। इधर देख, मुझे क्लियर है। Straight बात करें। शुदीद सिंगल, शुदीद। यार, ये तो- नंबर बोलूं? नंबर बोलूं? ये तो मजाक है। नंबर बोलूं? एक नंबर देने लगे। 0321 आगे आगे। डैश 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 शुदीद वाली सिंगल आयशा गफ्फार। Okay. इनफैक्ट आर्किटेक्ट आयशा गफ्फार, आर्किटेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट हाँ। आयशा अब्दुल गफ्फार सिंह। 09007 सेवन टेलीफोन। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो है आयशा गफार कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, और इस फील्ड में आने की क्या है? आर्किटेक्ट होने के बावजूद शोबिज़, अच्छा। क्योंकि एक फीमेल को शोबिज़ में बड़ी चीज़ों का सामना करना है। हम्म, अगर फीमेल घर से बाहर निकलती है, बड़ी नज़रों का सामना करना है। हम्म। किस तरह मैनेज करती हैं, किस तरह इनको जो है जवाब दें? सबसे पहले सवाल का जवाब तो ये, मैं लाहौरी हूँ, लाहौर अच्छा, में पैदा हुई। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज बोर्न इन लाहौर। मेरी सब बहन भाई की पूरी फैमिली बिलोंगिंग लाहौर। ठीक है। सेकंड थिंग इज कि जो मेरी फैमिली है बहुत, एक तो डॉक्टर्स फैमिली है, हम्म। अच्छा उन सबका पीएचडी पता है किसमें है? इस्लामिक अरबिक स्टडीज। अच्छा। पर्शियन में। ये मेरी ये किधर से आ गई है? इनको उठा के भेज दिए। ये नीचे का नहीं है। यही मेरी जगह यही है। जगह, फिलहाल यही तो है, मेरी फिलहाल। फैमिली का सीन ये है कि मेरी फैमिली में या तो डॉक्टर्स हैं हम्म। या पीएचडी। ठीक है। अब जो पीएचडी है वो इस्लामिक स्टडीज है, हम्म। सारे के सारे। ठीक है। हो गया। और जो डॉक्टर्स हैं वो तो वैसे ही ये वाले डॉक्टर्स हैं ना, कहाँ से काटना है, कहाँ से कसाई। कसाई है, कसाई बता रही है ना। है। इनका अपना स्लॉटर हाउस है, दूसरे सारे। ठीक है। अच्छा,
अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब मेरे 7 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 भाई 7 माशाल्लाह। भाइयों की मैं इकलौती एक ही एक बहन हूँ, ख्वाब हाँ, एक ही बहन है, मोहब्बत तो फिर मिलती होगी सबसे। बहुत ज्यादा। मेरे भाई मेरा फखर है, माशाल्लाह। मैं हर जगह पर मेरी बात बोलती हूँ, मेरे भाई हैं। मैं जो हूँ अपने बाप और अपने भाई से हूँ। माशाल्लाह। और इस सब के पीछे मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा हस्बैंड पैदा किया और फिर उन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए माशाल्लाह। जिनकी वजह से मैं हूँ, क्योंकि साहिब मेरी भाई, पहचान ही यही है। ये जिस तरह ट्रोल करे ना माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह। नहीं अच्छी मैं ट्रोलिंग देख ले। ट्रोलिंग में माशाल्लाह दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह पाक सलामत रखे कि भाइयों को भी और इनके आपस के प्यार को। अच्छा साहिब भाई, आप जो है पर्सनली करते क्या है, किस तरह इस फील्ड में है? टाइम जाया करते हैं अपना भी, लोगों का भी। बाद ही खत्म कर। गाली And- मुक गई। नहीं भाई, लेकिन पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि हाँ मैं मैरिड हूँ यार। अच्छा। हाँ, ओ माय गॉड। हाफ ऑफ नहीं पूरा मैरिड। कंफर्म। आखिरी फैसला है। एक मिनट सोच लिया आपने? बताएं। आप मैरिड हैं? मैं दुआ करें। अच्छा मैं कह रहा हूँ, कहने लगा 2 बार एंड में जाते क्या पैगाम देते? जाते जाते पैगाम मेरा किसके लिए, आपके लिए या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए? नहीं ओवरऑल पाकिस्तान के जो इस फिल्म के बारे में बहुत गलत कमेंट्स कर रहे हैं। जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं भाई वो उनका अपना मर्जी है। हमने तो एक अच्छी चीज बना के सामने रखी है, जो शऊर रखता है उस चीज को समझेगा। जो ट्रोल करेगा ऑब्वियसली वो जाहिल है। अच्छा मेरा ये मानना है कि अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, आप खुद से उसको या तो अच्छा बनाते हैं या बुरा बिल्कुल। बनाते हैं। फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज दैट कि बुराई और अच्छाई जब तक बैलेंस में है तब तक दुनिया कायम है। है। जब अच्छाई या बुराई ज्यादा हो जाएगी तो कयामत आ जाएगी। तो जितना बुरा सोच सकते हैं सोचें सोचिए। और जितना अच्छा सोच सकते हैं सोचें। इससे किसी के साथ कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। बेसिकली इससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हेल्थ में डायरेक्ट वजह दी आप जरा डॉक्टर खानदान अपना वो बिजनेस अच्छा, प्रमोट business करना चलाना है, है ना। बिजनेस प्रमोट नहीं करना। लोग बीमार अल्लाह खैर करे आपकी। सेहत में ये चाहती हूँ अब- कि लोग सेहतयाब रहें। नहीं शुक्र है डॉक्टर ने तो अपना बिजनेस प्रमोट करे, गौर करनी है। इधर जो सारे बैठे फिर इंतजाम इधर से ही करवाना इंतजाम पड़ता इधर से करवाते हैं। है। सबसे वो इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा जो आप लोगों के साथ मज़ा लिया। मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ। आप मज़े ना लिया करें, आप भाभी से जाएं, भाभी के साथ बातचीत करें, क्योंकि सच्ची आपका बात है। कोई कंफर्म नहीं कि आधे मैरिड है, हाफ मैरिड है, फुल मैरिड है, ठीक है आपका नहीं ये कंफर्म। मैंने सस्पेंस बनाई रखनी है कुछ अच्छा। सालों। क्यों? ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब फील्ड कोई में- और भाभी है। फील्ड में काम कर। इसका मतलब कोई और भाभी है। ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं। मूवी मतलब अब एक्टर बन गया ना तो लाइफ में भी सस्पेंस होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की पहली मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे जा रही है, आज तक कोई मूवी अप्रूव नहीं हुई है, हाँ, पहली मूवी है। जी, जी। और आप लोगों का उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त किरदार है, उज़ैर भाई का बड़ा अच्छा किरदार है, आपकी पूरी टीम का बड़ा अच्छा किरदार है रेड बत्ती का, क्योंकि एक टीम हो तो फिर काम कर हमेशा काम टीम से ही होता है। सिंगल बिल्कुल। बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी वन नहीं मैन कर शो सकता। तो है ही नहीं। Where there's a team, there's a work. One man show लाइफ में कभी कोई बोले ना कि बिल्कुल। मैं वन मैन शो कर रहा हूँ तो वो सबसे बड़ा झूठ है। ठीक हो। वन मैन शो कुछ नहीं। जी नाज़रीन, आपने हमारे खूबसूरत गेस्ट की जो है गुफ्तगू सुनी, खूबसूरत। पूछा नहीं था मैंने, लेकिन फिर क्या जाए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बहुत आपने खुद बताना कि खूबसूरत है कि नहीं है, बाकी मैंने देख लिया, मेरे सामने बैठी है, खूबसूरत है कि नहीं, वो मैं बोल दूँ हाँ, नहीं, बोल दो। आपको नहीं, साइम भाई ने इशारा किया, नहीं, बच्चों ये छोड़ दे तो इशारा कर आप दिया कर उन्होंने, रहे हैं, नहीं, नहीं उन्होंने अब मना आप कर बोलेंगे, नहीं उन्होंने मना। अब आप बोलेंगे। अब तो मैं सुन मेरे के मेरे जाऊँ। बाल भी खराब। अब नहीं, तो नहीं, मैं बोल, अब बोल। अब तो मैं सुन के जाऊँ। बोले माशाल्लाह खूबसूरत है। इंसान को अच्छा खूबसूरत इशारा मेरी होना तरफ चाहिए। कर रहा है यार तू। उनका बताना था, देख हाथ किधर है। इंसान को खूबसूरत होना चाहिए। सूरत में क्या रखे? सूरत तो बेशक। 4 दिन की मेहमान होती है। क्या सीरत बात। होनी चाहिए। सीरत हमेशा जिंदा नहीं रहती आजकल है। प्लास्टिक सर्जरीज आई हुई है, 4 दिन 8 दिन में बदल जाते हैं। आपको इनकी बातों की नहीं समझ आ रही, घुमा फिरा के बातें कर रही हैं। सीरत को उधर लेके आ रही है, लोग देखें और हमारे घर में से रब्ता करें। इधर जा रहे हैं आप। प्रपोजल आए। अच्छा छोड़ दें जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी खूबसूरत खूबसूरत लोगों की, और मैंने बताया कि जो फिल्म का मकसद है, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि गलत फिल्म है, पाकिस्तान में फिल्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन रेड बत्ती जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर अप्रूव्ड होगी। इनका ये कहना है कि 3 मिनट देखने से कुछ नहीं पता चलता, इसके पीछे जो 1 घंटे 40 मिनट की स्टोरी है वो लाजमी देखें, ताकि आपको पता चले इस फिल्म का जो है मकसद क्या है, इस फिल्म में किन चीज़ों से रोका जा रहा है और किन चीज़ों को प्रमोट किया। उसके बाद भी आप अपने कमेंट दे सकते हैं। हाँ, 1 उसके घंटा बाद भी। 40 मिनट, क्योंकि बोलना आपका हक है। आप बोलेंगे नहीं तो हम बनाएंगे कैसे? बिल्कुल। हमारा काम बनाना है, एग्जीक्यूट करना है। आप बोलेंगे हम आपके पीछे हैं, डोंट वरी। बिल्कुल ऐसे ही आप बोलें, हम आपके पीछे हैं, आदत होगी है सुनने की आदत होगी। आलम शादी से अपने मेज़बान शाज़िब आलम को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।